हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत रेगुलरली डिस्कॉर्ड पे, यूट्यूब के कमेंट्स में, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, डीएम्स में कई जगह ये चीज़ पूछते हैं कि मतलब अपनी कॉलेज जर्नी में हाउ दे शुड एक्चुअली अप्रोच डीएसए। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन भी होता है क्योंकि डीएसए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आई वुड से करियर का। काफ़ी सारे इंटरव्यूज तुम्हारे डीएसए पे डिपेंड करते हैं, तुम्हारे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स डीएसए पे डिपेंड करते हैं और डीएसए का यूज़ करके ही तुम बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे। अभी तक अपने करियर में डेफिनेटली अगर मैं एमएनसीज की बात करूँ तो 20 से ज़्यादा एमएनसी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिंक्डइन, स्प्रिंकलर, ब्लूमबर्ग, डंजो, ब्लिंकिट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इंटरव्यूज मैंने क्रैक करे थे। बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज थी जिनके किसी राउंड में जाके मैं एलिमिनेट हो गया था। So guys, before moving forward, there is a very important information that I would like to give you. So recently we wrapped our Elite 1.0 front-end development course, and now we have launched our Elite 2.0 advanced front-end development course. This is a bigger and a better front-end development course that you need. This course doesn't need any particular prerequisite, and we are going to take you from the very beginner level to the advanced level of front-end engineering. We have actually included projects like your own Replit clone, Wix website maker clone, right? Uber clone, and a lot of similar projects. You are going to make your own PubSub library based LLD driven projects, and we are going to make sure that you learn important front end design patterns as well. I'm going to list down all the projects and all the important design patterns here. This is the only course that you need if you are aiming for SD1 or SD2 or SD3 kind of roles, because we are going to take everything to the very advanced level in front end engineering. We are going to learn a lot of optimizations, and we are going to see technologies like Next.js, Redux, Zustand, TypeScript, React, and of course, the latest version of React. This particular course is going to make sure that you have ample amount of projects that you can add in your resume. We are going to make approximately 20 plus projects with different variety of complexities, engineering problems, and of course, there will be a lot of discussion around the core concepts of front-end. So what are you waiting for? Check out the course link in the description below, and you can use the coupon code mentioned in the description section to get maximum discount possible. See you guys in the cohort, and let's get back to the video. But मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि DSA has been something जहाँ पे I was able to perform well in the interviews। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि मैं खुद किसी भी DSA राउंड के लिए या ओवरऑल अपने कॉलेज में DSA के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करता था। ये जो भी चीजें हैं, दिस वर्क फॉर मी। ये सेम टू सेम चीजें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी वर्कआउट कर चुकी हैं। ऐसा हो सकता है ये चीजें तुम्हारे लिए काम करें, ऐसा हो सकता है ये चीजें तुम्हारे लिए काम ना करें। सो टेक ऑल ऑफ दिस एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट वर्क फॉर मी, एंड देन यू कैन लाइक मॉडिफाई थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज दिस हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। एंड ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। मतलब कोई भी तुम डीएसए का क्वेश्चन मेरे मुंह पे फेंक के मारोगे और मैं वो सॉल्व कर ही दूंगा, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, how to approach questions in an interview is a far more different scenario than how do you actually like separately solve any other question। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर डीएसए तुम्हें प्रिपेयर करना है, then how you can actually do that and what worked for me that helped me to crack all of these offers। So without any further ado, let's just start। But before starting the video, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, do consider subscribing to the channel। It will help us a lot to reach more and more people, and it will get you notified for all the awesome content that we are going to put on this channel। So let's just start। तो देखो यार, अपनी कॉलेज की जर्नी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने करी थी वो ये थी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ही मैंने बहुत ज्यादा डीएसए को टाइम दिया था। मतलब देयर वर सम क्लासेस जो मैंने ज्वाइन करी जहां से मैंने डीएसए को पढ़ना शुरू करा, जाना कि एक्चुअली डीएसए में क्या होता है, कैसे चलती हैं चीजें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो एक तो कोई भी तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो तो उसके फंडामेंटल के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे अब तुम मान लो लिंक लिस्ट पढ़ो तो लिंक लिस्ट में 10-20 कुछ तो फंडामेंटल क्वेश्चन है ही ना, जैसे मिड पॉइंट निकालना, रिवर्स 2-3 तरीके से करना, उसके बाद मर्ज करना लिंक लिस्ट को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे 10-20 क्वेश्चन हर टॉपिक के तो फंडामेंटल पढ़ते हुए ही तुम सॉल्व कर लेते हो। और इसके अलावा मैंने अप्रॉक्सीमेटली 150 ऑड और क्वेश्चंस करे थे खुद से एंड टू एंड हैकर रैंक से, जो कि जिसमें काफी ज्यादा मेजॉरिटी मतलब ऐसे 70-80 क्वेश्चन शायद इजी होंगे, उसके बाद कुछ मीडियम क्वेश्चंस होंगे, तो 50-50% मेजॉरिटी इजी मीडियम की, कुछ थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन। उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि हार्ड क्वेश्चन एकदम से ही बन जा रहे हैं, राइट। बट उस एक्टिविटी का एक एजेंडा था, ये एजेंडा था कि मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। एक चीज तुम नोटिस करोगे, जो भी लोग मतलब जिनके फंडामेंटल डीएसए वाले स्ट्रांग होते हैं ना, उनको फॉर लूप लिखते टाइम, एक नेस्टेड लूप लिखते टाइम बहुत सोचना नहीं पड़ता। मतलब वो प्रॉब्लम का कोर लॉजिक ज्यादा देर तक सोचते हैं। ऐसा लॉजिक जो मतलब बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही रेगुलर है, वो उनका एक ही बार में इंप्लीमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर किसी प्रॉब्लम में मुझे लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है, तो लिंक लिस्ट रिवर्स कैसे करनी है उसको सोचने में मैं 5 मिनट नहीं बताऊंगा। वो चीज मेरी लेट्स से 30 सेकंड में रिजॉल्व हो जाएगी और 1 मिनट में कोड भी हो जाएगा। मैं अपने आप में वो एबिलिटी सबसे पहले प्रिपेयर कर रहा था कि जो फंडामेंटल एल्गोरिथम्स हैं वो एक ही बार में
इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे अब मान लो तुम्हें कोई लिंक लिस्ट चेक करनी है कि वो पैलिंड्रोम है नहीं, तो तुम क्या करो, रिवर्स करोगे और फिर इटरेट करके चेक कर लोगे। अब तुम्हारा टाइम स्पेंड होना चाहिए ये सोचने में कि अच्छा रिवर्स करके इटरेट करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पैलिंड्रोम चेक हो जाएगा। इसमें टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए कि रिवर्स कैसे करना, समझ रहे हो। तो फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इस वजह से फर्स्ट ईयर में ही मैंने अप्रोक्सीमेटली 300 ऑड क्वेश्चन जो फंडामेंटल सीखते टाइम होते हैं वो प्लस 150 के आसपास और क्वेश्चन मैंने हैकररैंक से बना ली थी। उस टाइम लीड कोड वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था, तो दैट्स व्हाई हैकररैंक वाज द प्लेटफॉर्म जो मैंने चूज करा। यूआई वगैरह सही होता था, थोड़े टेस्ट केस वगैरह डाउनलोड हो जाते थे तो समझ में आ जाता था कि कहाँ पे गलतियां हो रही है। और मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा लिंक लिस्ट, हैश मैप्स, ट्रीज, इस सब के कॉन्सेप्ट पे, रिकर्जन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। इन चीजों का मैंने ध्यान रखा था सबसे पहले। इस सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी जो मैंने करी थी, वो ये थी कि रिकर्जन को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था। मतलब मुझे अभी भी याद है कि 3 से 4 हफ्ते मैंने रिकर्जन के फंडामेंटल पे बहुत ही डीपली दिए थे। मतलब पेन एंड पेपर लेके नोटबुक पे मैं बैठ के ड्राई रन करता था। ये सोचता था कि अच्छा अब अगली बार जब इसको सॉल्व करना है तो बिना ड्राई रन के कैसे इसकी इंट्यूशन बनेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वाली अप्रोच में रखता था, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिकर्जन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से ही बहुत सारे आगे के टॉपिक्स उनके सफर करते हैं। ट्रीज तुम्हारा सफर कर जाएगा, डीपी सफर करेगा, ग्राफ के बहुत सारे एल्गोरिदम सफर करेंगे, राइट। तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि रिकर्जन जितना इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा हिला, राइट। तो रिकर्जन पे तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं सबको हाईली रिकमेंड करूंगा कि रिकर्जन के 30-35 ऑड क्वेश्चंस तुम डेफिनेटली सॉल्व करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा जहां पे मैंने टॉपिक बाय टॉपिक बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन के लिंक, लीड कोड के लिंक डाले हुए, तुम जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। मैं इसको एक फॉर्मल शीट के फॉर्म में डाल दूंगा, एक वीडियो सेपरेटली डाल दूंगा। बट रिकर्जन की इंपॉर्टेंस देखो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर तुम्हें रिकर्जन के फंडामेंटल नहीं आते ना तो रिकर्जन बेस्ड प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो रिकर्जन बेस्ड प्रॉब्लम्स है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सॉल्व निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए रिकर्जन पे फोकस करना, मतलब मैं स्पेसिफिकली रिकर्जन के ऊपर बात कर रहा हूँ। और ये स्पेसिफिकली इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रहा होता था तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रिकर्जन के बाद से क्लासेस को फॉलो करना छोड़ देते थे। ये बहुत सारे लोगों की गलती होती है। रिकर्जन टफ है, सबको महीना 2 महीना लग जाता है जो बिल्कुल ही फंडामेंटल स्टेज पे होता है, बट इससे तुम्हें डरना नहीं है। यू हैव टू फाइट बैक। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मुझे अप्रोक्सीमेटली अपने सेकंड ईयर में जाकर रियलाइज हुई थी कि यार मतलब क्वेश्चंस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मतलब तुम चाहो तो 1 लाख क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, सब पे इनफ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, बैठ के तुम जिंदगी भर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बट वो हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे। और एक चीज मैंने ये रियलाइज करी थी, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस एक प्लेटफॉर्म होता था इंटरव्यू बिट, जिसमें आगे जाके मेरी पहली जॉब भी लगी थी। मतलब इंटर्नशिप प्लस पीपीओ टाइप ऑफर था मेरे पास इंटरव्यू बिट से। तो इंटरव्यू बिट में एक चीज मैंने रियलाइज करी थी कि वहां पे उन लोगों ने थोड़ा सा कैटेगराइज करा हुआ था प्रॉब्लम्स को। जब उनके प्रॉब्लम सेट से मैंने वॉक थ्रू लिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि सारी प्रॉब्लम्स न्यू नहीं है। कुछ प्रॉब्लम दूसरी किसी सॉल्व करी हुई प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। जैसे मैथ्स में होता है तुम्हारे पास, जैसे तुम इंटीग्रेशन में करते हो, इंटीग्रेशन के 10-12 पैटर्न होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर उन्हीं 10-12 पैटर्न्स के बेसिस पे तुम 500-600 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो सिमिलर चीज डीएसए में भी होती है। तुम अप्रोक्सीमेटली 30-35 ऑड पैटर्न्स निकाल पाओगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस टॉपिक्स मिला के। और सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एटलीस्ट जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तुम्हारे लिए रेलेवेंट है वो इसी कैटेगरी में फॉलो आउट कर रहे होंगे, राइट। तो एक बुक भी है CP3 जैसे, वहां पे तुम्हें सीपी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता लगेगा। तो CP3 की बुक में अगर तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उन्होंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के मोस्टली प्रॉब्लम्स को 6 to 7 प्रॉब्लम सेट में डिवाइड करा हुआ है। कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डीपी विद बिटमास्क के हैं, वो TSP के पैटर्न से सॉल्व हो सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पिक नॉट पिक स्ट्रैटेजी वाली हैं, वो नैपसैक से सॉल्व हो सकती हैं, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से तुम्हें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं कि अच्छा एक सेट ऑफ प्रॉब्लम इस पैटर्न से सॉल्व हो जाती है, एक सेट ऑफ प्रॉब्लम इस पैटर्न से सॉल्व हो जाती है। इससे क्या होगा, जब इंटरव्यू में नया क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें स्क्रैच से सब कुछ सोचना नहीं होगा। तुम्हें रियलाइज होगा कि इससे सिमिलर मैंने एक प्रॉब्लम करी हुई है और अब उसके ऊपर मुझे अपना सोल्यूशन बिल्डअप करना है। और फंडामेंटल अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है तो ये चीज तुम काफी फास्ट आई वुड से रिजॉल्व कर पाओगे, राइट। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान देके चलना है। मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में चैनल पे एक वीडियो डालूंगा जहां पे मैं अपने नॉलेज के हिसाब से डीएसए के जो भी पैटर्न्स मुझे पता है, जिन पैटर्न्स के बेसिस से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। बट दिस वाज समथिंग दैट एक्चुअली चेंज द होल डायरेक्शन हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर डीएसए। मतलब ये जो इंट्यूशन बेस्ड पार्ट था ना, कि मतलब अगर पहली बार किसी ने सोचा होगा तो कैसे सोचा होगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोग हीप सॉर्ट के ऊपर मतलब पूरा दिन लगाते हैं और उसको याद करते रहते हैं कि हीप सॉर्ट ऐसे चलता है। टेक्निकली हीप सॉर्ट कुछ नहीं है। अगर तुम्हें सिलेक्शन सॉर्ट आता है और तुम सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम निकालने के लिए लीनियर सर्च की जगह हीप यूज करना शुरू कर दो, वो हीप सॉर्ट बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से सोचना कि ऑलरेडी अगर तुमने कुछ सॉल्व किया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके क्या हम कुछ नया बना सकते हैं। दिस इज व्हाट इंट्यूशन बेस्ड लर्निंग इज। तो इस चीज का तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना है। ये पीस ऑफ एडवाइस अगर तुम अप्लाई करते हो तो बाकी सारी की सारी एडवाइस जो मैं देने वाला हूं, दैट्स गोइंग टू बी सेकेंडरी। दिस इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू टू इंप्रूव योर डीएसए ऑल टुगेदर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने अपने कॉलेज में इंप्लीमेंट करी थी वो ये था कि जब डीएसए की एक डिसेंट नॉलेज हो
गई थी, मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मेरे कॉलेज में उतना ज्यादा कोडिंग कल्चर नहीं है। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन कोडिंग क्लब, जो कॉलेज की सोसाइटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, वहां पे कॉलेज के बाद मतलब 4 बजे हमारा कॉलेज खत्म हो जाता था, उसके बाद हम लोग पढ़ाना शुरू करते थे। अब देखो पढ़ाने से एक फैक्टर क्या होता है कि पहली चीज तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। दूसरे बच्चे अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और तुम्हें उसका आंसर नहीं आता है तो तुम घर जाके उन चीजों को चेक करते हो, उससे तुम्हारे फंडामेंटल और स्ट्रांग होते हैं, कम्युनिकेशन तुम्हारी बिल्डअप होती है और तुम्हारी बढ़िया रिवीजन हो जाती है। मतलब मान लो अगर तुमने खुद से सेगमेंट्री पढ़ लिया और कल जाके तुम्हें कॉलेज में सेगमेंट्री पढ़ा तो तुम एक बार खुद से रिवाइज करोगे, राइट? तो रिवीजन हो जाता है। ये चीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अप्लाई करी थी। और मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितने मेरे जूनियर्स को ये चीज याद होगी, बट हमारी सोसाइटी में हम लोग काफी रेगुलरली डिफरेंट तरह की कोडिंग क्लासेस रखते थे एंड वी यूज्ड टू लव दैट। इसके अलावा एक और जो स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करता था वो ये था कि आस्क एवरीथिंग। मतलब कोई भी चीज अगर एल्गोरिथम में हो रही है ना तो उसका एक रीजनिंग होता है, उस रीजनिंग को हम लोग बहुत डीप जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मर्ज सॉर्ट में तुम अपनी एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 2 में ही क्यों डिवाइड करते हो? तुमने 3 में क्यों नहीं डिवाइड करा, 4 में क्यों नहीं डिवाइड करा, राइट? हीप में तुम बाइनरी ट्री ही क्यों लेते हो, टर्नरी ट्री क्यों नहीं लेते? इस तरह के क्वेश्चंस पूछना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इससे ना तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे कि मतलब एक्चुअली इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक अच्छी चीज जो मैं करता था वो ये करता था कि कभी कभी ना कुछ प्रॉब्लम्स में एक इंटरेस्टिंग सी कोई ना कोई ट्रिक लगती थी, राइट? जैसे एक ट्रिक होती है डिफरेंस वेक्टर की ट्रिक होती है, जिसमें हम लोग एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पे +1 और -1 कर देते हैं। डिफरेंट क्वेरीज के लिए +1 -1 करते हैं और लास्ट में प्रीफिक्स ले लेते हैं। तो ऐसी कुछ ना इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती थी। इन ट्रिक्स के बेसिस पे मैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करता था और इन ट्रिक्स को हमेशा दिमाग में रखता था। और कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं मतलब एकदम डेड एंड पे स्टक हूं ना, तो मैं ट्राई करता था कि जो मैंने ट्रिक्स सीखी हुई हैं, जो मतलब ऐसे कॉर्नर केस बेस्ड ट्रिक्स हैं जो कभी किसी प्रॉब्लम में लगी थी, क्या वो इस प्रॉब्लम में लग सकती है। इससे क्या होता है, एक वाइडर पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए ओपन हो जाता है। और अगर तुमने मतलब उस ट्रिक्स पे बिल्कुल ही मास्टरी करी हुई है तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए तुम्हारे दिमाग में, राइट? तो ये एक एक्टिविटी मैं बहुत रेगुलरली करता था। अब एक और चीज जो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा करी ये था कि घर से कॉलेज जाने में 1 घंटे लग जाते थे और कॉलेज से घर आने में 1 घंटे लग जाते थे। तो मैं एक चीज करता था, मैं अपने फोन में, उस टाइम पे जीएफजी काफी ज्यादा रेलेवेंट था और उसके बाद लीड कोड नया बनना स्टार्ट हुआ था 2018-19 में। तो मैं अपने फोन में लीड कोड और जीएफजी के आर्टिकल्स 2 4 5 क्वेश्चन के ओपन कर लेता था। कुछ नहीं करता था, उस आर्टिकल को बस पूरा रीड कर लेता था, ठीक है? इससे क्या होता था कि मतलब अभी मैंने उस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट नहीं करा है, बट एक बार को तुम्हारे दिमाग में ना एक अप्रोच से आ जाती है कि अच्छा इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा कहीं तो हमने पढ़ा हुआ है। तो रीडिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डीएसए की प्रिपरेशन में। वो बच्चे जिन्होंने मतलब 300 400 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उनके साथ एक डेफिनेटली चीज तो हो गई है कि अब उनका मतलब मसल मेमोरी बन चुकी है प्रॉब्लम्स को लेकर। मतलब फॉर लूप लिखते टाइम 2 बार नहीं सोचेंगे, बाइनरी ट्री बनाते टाइम 2 बार नहीं सोचेंगे, राइट? अगर तुम्हारी मसल मेमोरी इतनी बन गई ना तो तुम्हें रीडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी ब्रेड्थ ऑफ ट्रिक्स और ब्रेड्थ ऑफ अप्रोचेस बढ़ा पाओ, राइट? इस चीज का तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना है और तुम एक टाइम कार्व आउट करना होगा। मतलब ये चीज मैं और भी टाइम करता था, जैसे क्लास में कॉलेज में अगर कोई बोरिंग सा सब्जेक्ट चल रहा है तो पीछे बैठ के एक लीड कोड का आर्टिकल या कोई कोड शेफ का लास्ट किसी कॉन्टेस्ट का आर्टिकल ओपन कर लिया और देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो पेन पेपर पे ड्राई रन कर रहे हैं, उस टाइम कोड नहीं कर रहे, मे भी घर जाके कोड कर लेंगे। रीडिंग की हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आई, तुमने कभी खुद से कोड नहीं करी थी, बट कभी ना कभी उसके जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर रीड भी करी थी ना, तो एटलीस्ट इंटरव्यू में तुम्हारे पास एक डायरेक्शन रहेगा। और देखो आप आज के टाइम में लीड कोड पे आई गेस 2500 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, तुम 2500 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? बट हाँ, तुम 700-800 क्वेश्चन सॉल्व करके 300-400 क्वेश्चन और रीड कर सकते हो, तो अच्छे 1200-1300 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। इस चीज का तुम्हें ध्यान देके चलना है। ये एक हैबिट थी जो मैंने डेवलप करी थी और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक मैंने इस चीज को सस्टेन करा था। इफ यू कैन ट्राई इट आउट, लेट मी नो ये तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल रहती है। एक और चीज जो मैंने करी थी, जो मतलब अगर तुम करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। मतलब इसका कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन तुम्हारे इंटरव्यू प्रिपरेशन पे नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब एक फन के लिए अगर तुम एक एक्टिविटी करना चाहते हो तो तुम सीपी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो मेरा एक फंडा है लाइफ में, जैसे जो बच्चे 11th क्लास में होते हैं ना, उनको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट टफ लगते हैं, बट जैसे ही वो बच्चे 12th क्लास में आ जाते हैं ना, उनको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट रिलेटिवली ईजियर लगते हैं। तो जैसे ही तुम जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ रहे हो अगर उसी में घुसे रहते हो ना, तो तुम्हें वो चीज़ तो टफ लगती है, बट जैसे थोड़ा सा तुम और हार्डर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हो तो मुझे रियलाइज होता है पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स रिलेटिवली ईजी थे। सीपी पढ़ते टाइम ये चीज़ मुझे रियलाइज होती थी, ठीक है, कि अच्छा अगर मान लो आप कोई भी नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और नंबर थ्योरी से पहले मैंने प्राइम सीव के कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो भी नंबर थ्योरी का पार्ट है, बट अलग से एक बार कभी प्राइम सीव पढ़ी थी। बट अब नंबर थ्योरी के एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम जब उसमें प्राइम सीव अप्लाई हो रही है तो उस टाइम रियलाइज हो रहा है अच्छा प्राइम सीव तो बहुत ईजी था, इससे भी हार्डर टॉपिक को एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिक मेरे लिए एग्जिस्ट करता था और मैं ये चीज
11th और 12th में भी बहुत ज़्यादा फील करता था कि मतलब शुरू में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वही 12th में आने के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाता था, राइट। तो ऐसी चीज़ें अगर तुम्हारे साथ भी होती है, सो मेक श्योर कि तुम थोड़े अपने आप को ना लेवल अप करते रहो, थोड़े हार्डर टॉपिक पढ़ते रहो। और उसके लिए एक बढ़िया तरीका होता है सीपी। मतलब तुम सीपी करोगे तो रिलेटिवली जो तुम्हारे नॉर्मल लीड कोड के टॉपिक्स है उससे हार्डर टॉपिक्स पे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी, राइट। ये चीज तुम कर सकते हो। जैसे अब तुम्हें मान लो डीपी पे अच्छी ग्रिप है तो तुम डीपी के एडवांस टॉपिक्स पढ़ो, जैसे एसओएस डीपी के बारे में पढ़ो, डिजिट डीपी के बारे में पढ़ो, डीपी विद बिटमास्क के बारे में पढ़ो। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारी जो फंडामेंटल डीपी वाला पार्ट है वो तुम्हें आसान लगने लगेगा, क्योंकि तुमने उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का यूज करके अब थोड़े हार्डर टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया है। हो सकता है तुम डीपी विद बिटमास्क पे बहुत ज्यादा ग्रास्प ना बना पाओ या तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना बने वो, लेकिन उसका यूज करके तुम्हारा जो बेसिक डीपी का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ईजी बन जाएगा। दिस वर्क फॉर मी, यू कैन ट्राई इट आउट, मे बी दिस वर्क्स फॉर यू एज वेल। दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। यू गाइस कैन लेट मी नो कि जो भी चीज मैं अपने डीएसए प्रिपरेशन में फॉलो करता था, अगर तुम एक बार ट्राई कर रहे हो इन चीजों को फॉलो करने का तो कैसा आउटपुट आ रहा है, कैसा आउटकम आ रहा है, आर यू गाइस सीइंग एनी चेंजेस और नॉट। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। कई बच्चे पूछते हैं कि लीड कोड के कॉन्टेस्ट में हम लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने अपने दिमाग में एक अप्रोच बनाई हुई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्टेस्ट है, मैंने 7-8 बार दिया, मैं सिर्फ 2 बार ही उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ करता था, अगर मान लो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 45 मिनट्स लगते हैं तो मैं एक चीज़ करता था कि 2 क्वेश्चन अब नेक्स्ट कॉन्टेस्ट से 30 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं, ताकि थर्ड क्वेश्चन के लिए 15 मिनट ज़्यादा भी मिले, और जो 2 क्वेश्चन मतलब जो 2 डिफिकल्टी मेरे लिए रिलेटिवली ईजी हो चुकी है उसको मैं और जल्दी टाइम में सॉल्व कर पाऊँ, राइट। ये चीज़ मैं एक अप्लाई करता था। इससे क्या होता था, हार्डर प्रॉब्लम के लिए टाइम भी बढ़ जाता था, और जो प्रॉब्लम्स अब मेरे लेवल पे इजी हैं उसको मैं और फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करता था, क्योंकि इवेंचुअल गोल यही था कि कंपनीज के ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट देने हैं, उसको क्लियर करना है। तो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस वाली चीज़ को अगर तुम हैंडल करना चाहते हो तो तुम A2OJ लेटर्स वगैरह को भी चेक कर सकते हो। अब तो उन्होंने मतलब दे आर नॉट एक्टिवली मेंटेनिंग एवरीथिंग, बट तुम्हें काफ़ी सारी आर्काइव्स वगैरह मिल जाएंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। बट ये भी एक ट्रिक थी जो मैं फॉलो करता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम एक बार अप्लाई करके देख सकते हो। इफ दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट, अगर ये तुम्हारे लिए काम करता है, वेल एंड गुड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली कुछ वीडियोस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि हम लोग डीएसए स्पेसिफिक कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। एक मैं डेडिकेटेड शीट और रोड मैप लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट द फैक्ट कि कैसे तुम एंड टू एंड डीएसए की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी मतलब पिछले 4 से 5 सालों में काफी सारे डीएसए में ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, सो हाउ यू कैन अकोमोडेट ऑल ऑफ दैट, किस तरीके से तुम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंड सो ऑन। दैट बीइंग सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह, साइनिंग ऑफ।